Guys, after substitution, the next topic in indefinite is integration by parts. Integration by parts. This is the next topic. Right? In this topic, guys, whenever there is product of two different functions, like in differentiation, we used to apply product rule, right? Whenever there used to be a product, we used to apply product rule. But in the case of integration, if we have product of two or more functions, right, and that two different functions, so we use integration by parts, right? Now, how to integrate an integrand by parts? So, if within the integral sign the integrand is product of two functions, I'm denoting u and v as two functions, right? So among these two functions, firstly we will decide which function is to be considered as first function and which as second function, right? So first and second function is determined by the priority rule ILATE. This helps you, right, in deciding which can be taken as first and second, otherwise there will be wastage of time. Priority rule. I stands for inverse trigonometric function. In short, we can write inverse trigonometric function. L stands for logarithmic function, you very well know. A stands for algebraic function. T for trigonometric functions, and E for exponential function, right? So ILATE has 5 letters and each letter denote functions of different kinds, like I denotes inverse, log, algebraic, trigonometric, exponential. Now among these two functions, which is to be considered as first and second? So the function which comes first, priority मतलब जो इसमें पहले आया, that is considered to be the first function and the second function, right? Now suppose we have product of two function. जो फंक्शन आइलेट में पहले आया उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और उसको डिनोट करते हैं बाय यू. मान लो u को मैंने फर्स्ट फंक्शन से डिनोट कर दिया और v क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इज डिटर्मिन्ड बाय आइलेट रूल. After determining the first and the second function, we apply the formula of integration by parts. So this formula states that the product of u into v can be integrated as u into integration of v minus integration of product of differentiation of u and integral of v. इस पूरे का प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन, राइट? दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. I repeat, first function into integral of second function minus integral of product of derivative of the first and integral of the second, right? इस फॉर्मूला को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. इफ़ यू क्वेश्चन मी कि सर कहाँ से आया, तो बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको तुम डिफरेंशिएट करके देखो, u इंटू वी ही आएगा, राइट? ठीक है, तो तुम इसको चेक करना चाहो तो यू कैन डू इट. मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x. किसको? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा देखते हैं. चलो डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल. किसी भी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आएगा जो उसका इंटीग्रेंड है, तो ये v हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx ऐसी रहेगा,
इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन डी यू डी एक्स, और इस इंटीग्रल का जो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इंटीग्रेंड आता है, तो इसका इंटीग्रेंड तो ये पूरा है, देख लो, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर यू वी आया। तो इसका डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन ये होगा बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, राइट, प्रूव हो जाता है। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है, तो सी बाय एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। सपोज वी हैव x cos x, बोलेगा इंटीग्रेट, ये नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट होगा ही नहीं, बिकॉज इसमें दो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक, वी हैव एल्जेब्रिक, राइट। तो x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस फंक्शन इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, तो वी ऑल कैन सी दैट एल्जेब्रिक कम्स बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक, देयरफॉर हम लोग एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, राइट। अब पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, बोलो x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, बाद में हम लोग स्ट्रेट अवे लिखते हैं, लेकिन पहली बार में आप समझो, इंटीग्रेशन का साइन दो, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट करोगे u को, u क्या है, x है, और इंटीग्रेट करोगे v को, यानी कि cos x dx। इसका जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि cos x का जो इंटीग्रल आएगा और x का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, इसके प्रोडक्ट का आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो चलो करते हैं, cos का इंटीग्रेशन sin x, अच्छा याद रखना इसमें प्लस c मत लिखना, क्योंकि c ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है इस फॉर्मूला में, वो भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, राइट। माइनस इंटीग्रेशन का साइन दो, x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1, cos का इंटीग्रेशन वी नो इज sin x। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है आपको, कर दो, x sin x प्लस cos x प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ डू वी यूज दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। एक और कर देते हैं, सपोज करो वी हैव x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, राइट। फिर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो एल्जेब्रिक पहले आता है या सॉरी इनवर्स पहले आता है या एल्जेब्रिक पहले आता है, तो इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, राइट। सो वी विल कंसिडर tan इनवर्स x एज फर्स्ट फंक्शन एंड x एज सेकेंड फंक्शन, राइट। चलो इसमें हम लोग पार्ट्स लगाते हैं। नाउ एज सीन फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स, तो वी विल अप्लाई द अबव फॉर्मूला, tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, और इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, राइट। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, आगे लिखना, माइनस इंटीग्रेशन साइन, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, खत्म। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से बनाना है, जो आपने पहले पढ़ा है। पार्ट्स हम लोग को मदद करता है इंटीग्रेट करने के लिए, 1 बाई 2 बाहर निकाल लिया, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर में मैं 1 जोड़ के 1 घटा दूंगा, राइट। अब आप अलग अलग कर दो, देखो आपको आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो ये आया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, राइट, माइनस हाफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देना, और dx बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन,
सबका फॉर्मूलाज पता है, सब फॉर्मूला के फॉर्म में आ चुका है। आप आंसर लिखने वाले हो माइनस हाफ एक्स माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ पार्ट it is possible for us to integrate the product of two different functions, right? Product of two different functions. Clear? Now guys, now there are points to remember in parts, right? Because in different situation we have different way of solving it by parts. The points which one should remember, points to remember. Straight away we are not going to apply parts, we have to remember few points. First point, right, before applying parts, simplify the integrand by either transformation or by substitution. ठीक है, that will make the process simple, right? एग्जाम्पल के तौर पे देखो जो मैंने बोला, सपोज करो वी हैव x साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो ओब्वियसली यू कैन सी दैट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। तो आप सोचोगे पार्ट्स लगाएंगे, सीधा पार्ट्स लगाओगे तो इट विल टेक टाइम, यू माइट गेट कॉट अप इन अ मेस। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिसाइड कर लिया एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सेकेंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा हो तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, लिख दिया। आप हाफ बाहर निकाल लेना, x dx अलग हो गया, और हाफ बाहर निकाल के x cos 2x अलग हो गया। नाउ एक सिंपल इंटीग्रेशन को मैंने दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसका आंसर डायरेक्टली आपके पास x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें आप पार्ट्स लगाओगे, दिख रहा है आपको। चलो पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन लिखना है तो बार बार सिंबल क्यों दें, सीधा लिख देते हैं sin 2x बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x क्या आएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही हाफ sin 2x। तो बार बार वो स्टेप्स नहीं लिखना है, शुरुआत में लिखते हैं हम लोग ताकि समझ जाएं। हो गया, ख़त्म, आंसर आ गया आपका। एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली पार्ट्स नहीं लगाया। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से सेकेंड वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं था। अगर तुम सीधा पार्ट्स लगा के करते तो आप वहाँ फंस सकते थे, राइट। सब्स्टिट्यूशन करते तो वहाँ पे फंसने का चांसेस होता। तो आपने पहले ट्रांसफॉर्म किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया एक। चलो नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं बोलूँगा साइन रूट एक्स को इंटीग्रेट करो, राइट, तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा ये, राइट। आपको लग रहा है खाली ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो है और इसमें अलजेब्रिक भी है, और अलजेब्रिक ऐसा है जो आपको इसको इंटीग्रेट करने से रोक रहा है, बिकॉज वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, रूट एक्स फंक्शन है, कॉम्पोजिट है ये। तो यहाँ देखो आप सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, रूट एक्स को पहले टी ले लो, तो एक्स क्या हो गया टी स्क्वायर, डी एक्स क्या हो गया 2t dt। अब पुट करो यहाँ पे तो क्या देखोगे तुम, साइन t हो गया ये, और dx का वैल्यू डालोगे तो 2t dt, 2 बाहर निकाल लिया मैंने, t dt।
अब क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक का प्रोडक्ट है? यस। और पहले आपको दिख नहीं रहा था वो। अब पार्ट्स लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, कर दो। तो आएगा ट्वाइस माइनस टी कॉस टी प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी अलग से लिख दो, टी का वैल्यू डाल दोगे -2 टी क्या है? रूट एक्स, कॉस रूट एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स। देखो आ गया आंसर। तो इसमें आपने फिर डायरेक्टली पार्ट्स नहीं लगाया और लगेगा भी नहीं, वो बनेगा भी नहीं। आपने पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई किया, फिर ये बना, राइट। एक और एग्जांपल देखो इसमें, राइट। सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई करने के बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे देखो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का रेंज दिया हुआ है आपको -1 से 1, ठीक है, ये दिया हुआ। बोलेगा इंटीग्रेट। अब तुम यहाँ सीधा पार्ट्स लगाओगे तो सोचो कितना बड़ा फंक्शन है ये, राइट। तो दिक्कत आएगी आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, राइट। x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। x का रेंज -1 से 1, तो x tan थीटा है तो tan थीटा का रेंज -1 से 1, राइट। और tan इनवर्स x है तो थीटा तो -π/2 से π/2 के भीतर होना चाहिए, राइट। इस इंटरवल में tan का वैल्यू -1 से 1 कब आएगा? तो जब थीटा -45 डिग्री से +45 डिग्री के बीच में होगा, राइट। हो गया। चलो अब यहाँ पुट कर देते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और डी थीटा निकालो यहाँ से, तो डी थीटा क्या आएगा? डी थीटा आएगा 1/1 प्लस डी एक्स, तो डी एक्स क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। यहाँ पुट कर दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दिया आपने, ठीक है। ये क्या बना? tan इनवर्स, फॉर्मूला है ये, दिस इज tan 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब tan इनवर्स tan 2 थीटा इनवर्स पे आ जाओ, क्या मैं इसको 2 थीटा लिख सकता हूँ? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा tan इनवर्स के रेंज में है या नहीं। तो थीटा का रेंज देखो मैंने निकाल दिया था, तो 2 थीटा का रेंज क्या आ रहा है? -π/2 से π/2, जो कि tan इनवर्स के रेंज को बिलोंग कर रहा है। इसीलिए इसको मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया। 2 को बाहर निकाल लो। अब खुद देखो क्या ये सिंपल पार्ट्स है? यस, ये सिंपल पार्ट्स है। फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए क्या होता है? लॉन मॉड सेक थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो 2 थीटा, थीटा क्या है? tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा x है तो यहाँ x आगे लिख दिया मैंने, -2 लॉन सेक थीटा, सेक को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख दिया, प्लस सी आंसर, राइट। तो यू गॉट द आंसर। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन से ये सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। डायरेक्टली अगर फॉर्मूला है सीधा मैं 2 tan इनवर्स x भी लिख सकता था, उससे सीधा पार्ट्स लगाता। ऑल्टरनेटिव वे है ये भी याद रखो। जिसको इन्वर्स का रेंज याद है वो ये भी लिख सकते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिव वे भी तब बता देता हूँ। और हमें याद है इन्वर्स से कि x जब -1 से 1 के बीच में होता है तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस tan x स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। लेकिन जिसको याद है, अगर मैं यहाँ x 1 से बड़ा कर दूंगा तो आपको याद नहीं होगा, तो गए आप, वो पाई प्लस होता है, राइट। तो चलो ये आ गया, 2 को बाहर निकाला,
tan इनवर्स x, अब सीधा पार्ट्स लगा देंगे, मेरा समय बचेगा, राइट। चलो तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है, सेकंड को हम लोग 1 ले लेंगे और पार्ट्स लगाएंगे, फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये सेकंड मेथड है। ये मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। ये टाइप 2 है, जो मैं अभी टाइप 1 बता रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिक क्या है मेरी बात का, कि जब भी पार्ट्स लगाओ इससे पहले आप ये चेक कर लो कि जो भी इंटीग्रैंड है क्या हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या उसका सेकेंड फंक्शन सीधा इंटीग्रेबल है, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एंड देन यू हैव टू अप्लाई पार्ट्स। सेकेंड पॉइंट, right, very important again. If first function is a higher degree polynomial, first function, mind it, first function मतलब u की बात कर रहे हैं, is a higher degree polynomial, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज अ हायर डिग्री पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वी यूज इंटीग्रेशन, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे, तो मेरा आंसर तुरंत आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। यूज मल्टीपल पार्ट्स, और मल्टीपल पार्ट का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूं। ये अप्लाई करना है, u इंटू वी है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड फंक्शन, राइट। तो मल्टीपल पार्ट्स क्या होगा, u यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो मल्टीपल पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4, सो ऑन चलते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए, राइट। अब बता दूं, यहाँ जो डैश देख रहे हो, u डैश, u डबल डैश, डॉट डॉट डॉट, डिनोट्स फर्स्ट सेकेंड डॉट 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 डेरिवेटिव्स, राइट, डेरिवेटिव्स ऑफ u, और v1 v2 डॉट 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 डिनोट्स फर्स्ट सेकेंड डॉट डॉट इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है। ऊपर वाला डैश डेरिवेटिव बता रहा है u का, कितनी बार u को डिफरेंशिएट, एक बार, दो बार, तीन बार, और नीचे 1 2 3 4 जो v के सफिक्स पे रखा है मैंने, लोअर सफिक्स पे, वो इंटीग्रल बता रहा है, v का फर्स्ट इंटीग्रल, v का सेकंड इंटीग्रल, v का थर्ड इंटीग्रल, राइट। ये मल्टीपल पार्ट्स है। देखने में लग रहा है कि सबसे आसान है इसका यूज़ करना। जैसे देखोगे, एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यूब कॉस एक्स, जस्ट इमेजिन, एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है, फर्स्ट फंक्शन तो होना ही चाहिए इसको, और ये पॉलिनोमियल है, देख लो ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन हायर डिग्री पॉलिनोमियल, यस, एक्स क्यूब है। अब मल्टीपल पार्ट से हम लोग एक स्टेप में आंसर लिखेंगे, राइट। कैसे देखो, u v1, u क्या है, एक्स क्यूब, और v1 मतलब इसका इंटीग्रेशन आप अपने मन में कर सकते हो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, माइनस लिखना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देना, और इसका इंटीग्रेशन मन में कर लो, उसको फिर यहाँ लिखना, माइनस कॉस एक्स लिखा, प्लस ऑल्टरनेटली प्लस माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना और इसका इंटीग्रेशन लिखना, फिर माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6 और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, उसके बाद फिर प्लस, फिर 6 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी लिख के छोड़ देना। देखो एक स्टेप में आपने आंसर लिखा गाइस, राइट। और अगर ये आपको नहीं पता होगा तो ये इसमें 3 बार आपको पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। आई विल शो यू। तो ये मल्टीपल पार्ट्स का फॉर्मूला है, याद रखना। कंपटीशन में इट टेक्स वेरी लेस टाइम। देखो एक स्टेप में आंसर लिखा मैंने, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है तो आप देख लो कितना समय लगेगा। मैं शो करता हूँ।
सेम क्वेश्चन, इसको आई मान लिया करो, इंटीग्रल को हमेशा आई लेते हैं हम लोग, नॉर्मल पार्ट्स लगाते हैं, नॉर्मल वाला पार्ट्स लगाते हैं हम लोग, राइट, जो नॉर्मल पार्ट्स है। चलो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन शुरू करते हैं। आई फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के अंदर में 3x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स। क्या खत्म हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी ये दो अलग अलग फंक्शन का अंदर में प्रोडक्ट आ रहा है, फिर से पार्ट्स लगेगा उसमें, एक्स क्यूब साइन एक्स, फिर इसमें पार्ट्स लगाएंगे। बोलो, फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 6x, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। क्या खत्म हो गया? स्टिल नो, क्यों? अभी भी ये दो फंक्शन का क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है, फिर पार्ट्स लगेगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खोलते जाना साथ साथ, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बाहर आ गया, -6 भी बाहर निकाल लो, x cos x, देखो अभी फिर पार्ट्स लगेगा, अभी भी प्रोडक्ट है। तो थर्ड बार 3 टाइम्स वी हैव टू अप्लाई पार्ट्स, तब तुम देखोगे कि वो आंसर आएगा जो मैंने नीचे लिखा। x फर्स्ट फंक्शन, cos का इंटीग्रेशन साइन, माइनस x का 1 cos का साइन, फिर साइन का इंटीग्रेशन करोगे नेक्स्ट स्टेप में, वो भी यू कैन सी हाउ मच टाइम दिस इज कंज्यूमिंग। लेकिन ये पॉलिनोमियल हो फर्स्ट फंक्शन तभी लगाना है, याद रखना। 6 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो -6 cos x प्लस सी। जरा आंसर मिला लो, देखो 1 2 3 4 5, मैंने बहुत सारे स्टेप्स थोड़ा जल्दी लिखे। आप देखो एक्स क्यूब साइन एक्स है, 3x स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस 6x साइन एक्स है, -6 cos x, -6 cos x। देख लो, ये एक स्टेप में आया, ये कितना टाइम लिया इसने। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, मल्टीपल पार्ट्स बोलते हैं इसको, याद रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी, थर्ड पॉइंट रिमेंबर, वेन एवर there is only one function in the integrand, and that too it is logarithmic or inverse function, we assume सेकेंड फंक्शन एज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल देखना। ln x का इंटीग्रेशन, अब बोलोगे इसमें तो सर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट ही नहीं है। तो जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम लोग पार्ट्स कैसे लगाएंगे? तो बिल्कुल बिना पार्ट्स के बनेगा भी नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन नहीं भी दिख रहा है तो वो हिडन है। तो ये लॉग है, आइलेट रूल को देखोगे, रूल प्रायोरिटी रूल आइलेट जो था उसमें लॉग पहले आता है, और जो 1 है इसको हम एल्जेब्रिक ट्रीट कर सकते हैं, x टू द पावर 0 1 एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इसको मैंने यहाँ, क्योंकि एल्जेब्रिक बाद में आता है तो लॉग इज फर्स्ट, 1 को हम लोग कंसिडर कर लेंगे सेकेंड फंक्शन। देखो सेकेंड फंक्शन इज 1, और पार्ट्स लगाएंगे, लगाओ, इसको आई लिखा करो, हर इंटीग्रल को आई। फर्स्ट फंक्शन ln x, 1 का इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ा पूरा स्टेप्स लिखेंगे तो समझ में आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर में फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और 1 का इंटीग्रेशन, राइट, ठीक है। और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे हम। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ln x, 1 का इंटीग्रेशन इज x, ln का डिफ्रेंसिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन फिर x, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आया x ln x -x प्लस c, ठीक है। तो ये इसको फॉर्मूला बना के याद रख लो, एकदम रट लो कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूज मैनी टाइम्स ऑफ्टन। तो ये हो गया x ln x -x प्लस c, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला के तौर पे इसको याद रखो ln x का।
लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा हमेशा जब भी पार्ट्स लगाओ आप ये चेक कर लो कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन, और देन अप्लाई पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ही फंक्शन दिख रहा था लॉग, और सेकेंड फंक्शन हम लोग 1 लेंगे। लॉग की जगह में इन्वर्स भी होगा तब भी यही प्रोसेस होगा, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने जो पीछे क्वेश्चन अभी लिखा था, मैंने बोला था बाद में दिखाऊंगा, tan इनवर्स x, राइट। ये इन्वर्स है, इन्वर्स पहले आता है सबसे फर्स्ट, यही हो गया। और 1 को हम लोग ले लेंगे सेकेंड फंक्शन और पार्ट्स लगाएंगे। लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, 1 का इंटीग्रेशन और इसके प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। चलो अप्लाई करो, 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा रिवाइंड में, और आप याद करो कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्लियरली देख सकते हो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि पॉजिटिव है मॉड नहीं लिखा मैंने आंसर। तो जब भी फर्स्ट फंक्शन में लॉग या इन्वर्स हो और कोई और दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा हो तो आप अपने से सेकेंड फंक्शन को क्या एज्यूम करोगे, 1, एंड देन यू विल अप्लाई पार्ट्स, ठीक है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फोर्थ पॉइंट, साइक्लिसिटी ऑफ इंटीग्रल, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब आप पार्ट्स लगा के उसको इंटीग्रेट करते हो तो करते करते वही क्वेश्चन वापस आ जाता है विद ऑपोजिट साइन, तो उसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कोई बोलेगा सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करो, तो आप इसको करके देखो, समझ में आएगा। मैंने इसको आई मान लिया, अब बोलोगे सर इसमें तो एक ही फंक्शन दिख रहा है तो पार्ट्स कैसे लगाएं, और बिना पार्ट्स के बनेगा भी नहीं, तो इसको हम लोग 2 फंक्शन में रिड्यूस कर देंगे, एक लिखेंगे sec x और एक लिखेंगे sec स्क्वायर x, राइट। अब इसमें पार्ट्स लगाएंगे, अब पार्ट्स लगाएंगे तो बोलोगे कैसे फर्स्ट और सेकंड चुने, तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। when both functions are trigonometric, when both functions are trigonometric, take that term as second function whose integral is easy, whose integral is what, easy, मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। अब बताओ दोनों में किसका इंटीग्रेशन बहुत छोटा है, सिंपल है, सेक स्क्वायर का, tan x, उसका ln sec x प्लस tan x, याद करो। तो इसको हम लोग ले लेंगे फर्स्ट सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और ये जो बच गया वो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। चलो पार्ट्स लगाते हैं और आई लिखना, फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फिर tan x, ये बन गया sec x इंटू tan स्क्वायर x। अब sec x को ऐसे ही रहने देंगे, tan स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अब फिर ब्रैकेट खोल दो, when you open the bracket क्या आया, माइनस sec क्यूब x dx प्लस sec x dx। अब आप खुद देखो कि आप किस क्वेश्चन से आपने शुरू किया था, sec क्यूब से, और आपके आंसर में फिर वही फंक्शन वापस आ गया माइनस sec क्यूब।
लेकिन ऑपोजिट साइन, मतलब ये प्लस में लिया आपने तो ये माइनस में आ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ये जो वापस इंटीग्रल वो आ गया, इसको मैंने क्या माना हुआ था, आई माना था, तो इसको आप यहाँ पे आई लिख देना, माइनस आई, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या होता है लॉन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। इस आई को इधर ले आओ, 2i, ठीक है, 2i आ गया, मुझे तो आई चाहिए था ना, तो आई तो मिल गया मुझे। टू से डिवाइड कर दो तो आई आ गया हाफ सेक एक्स टैन एक्स प्लस हाफ लॉन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी को 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट उसमें चला जाता है। तो ये साइक्लिसिटी का एक एग्जाम्पल है, राइट। इसके बाद गाइस मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। और इस ये भी साइक्लिसिटी वाला एग्जाम्पल है। ई के पार में लेट्स से 2x साइन 3x, तो ये स्पेशल टाइप है। इसमें क्या होगा कि एक एक्सपोनेंशियल होगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा ऑलवेज। तो क्या करेंगे, तो आइलेट रूल के हिसाब से चलें तो ये फर्स्ट ये सेकंड है, लेकिन मैं बता दूं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम लोग आइलेट रूल को अगर छोड़ भी दें, भूल भी जाएं, किसी को भी फर्स्ट ले लेंगे तभी बनेगा। रीज़न है कि ई के पार में एक्स का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम टाइप का होता है, राइट। सो चलो हम फिर भी आइलेट रूल को ही फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन है, पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ई के पार में 2x/2 लिखते पहले हम लोग, माइनस साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 cos 3x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, ई के पार में 2x/2 बाहर निकाल दिया। फिर प्रोडक्ट आ गया, फिर पार्ट्स लगाएंगे। चलो फर्स्ट फंक्शन cos 3x, ई के पार में 2x का इंटीग्रेशन ई के पार में 2x/2 माइनस cos 3x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 3 sin 3x इंटू ई के पार में 2x/2, राइट। अब देखो ध्यान से कि आपके जिससे आपने शुरू किया था वही आ गया आपके सामने वापस। यू कैन सी माइनस 9/2 4 उसको बाहर निकाल लो, क्या आया, ई के पार में 2x साइन 3x, देख लो वापस वही फंक्शन आ गया। ये आई था ना, वही आ गया, इसको आई ले लेना। तो i इज इक्वल्स टू हाफ नाइन बाई फोर आई, इसको इधर ले आओ, 9/4i को एलसीएम ले लोगे तो 13i/4 हो गया, और दोनों में कॉमन निकाल लो, ई के पार में 2x/2 बाहर निकाल लो, ये एलसीएम 4 ले लो, 4 बाहर निकाल लो, तो ये क्या आएगा 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी, और 13/4 से इसको डिवाइड कर देना, 4 कट जाएगा, 13 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 13 उठा के यहाँ पे 13 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर, राइट। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है। याद रखना, इसको हम लोग एक वे पार्ट से सॉल्व कर रहे हैं, एक एंटी डेरिवेटिव मेथड भी है इसका, और एक मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखाया था बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, याद रखना, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मेथड से अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। हम लोग पार्ट्स नहीं लगाएंगे अब। जब भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना, ई के पार में 2x है तो 2x लिखना, ई के पार में 3x है तो ई के पार में 3x लिख देना, और ब्रैकेट के अंदर लिखना a, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे a sin 3x, 3x है तो 3x, यहाँ 5x होगा तो 5x लिखना, प्लस b cos 3x, हमेशा ऑलवेज ऐसे लिखना, ठीक है। जो e का पावर है e के पार में वही आएगा, और साइन और कॉस का एंगल वही होगा जो यहाँ पे है, बाकी a और b ऐसे ही लिखना।
अब हमें आंसर तो लिख ही दिया मैंने मुझे खाली ए और बी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तुम लोग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एफ एक्स का इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बाय एंटी डेरिवेटिव मेथड मैंने शुरू में बताया था, एफ एक्स ही होगा, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, सेम अंदर वाला पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ई के पावर में 2x कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन तो इसका हो जाएगा 3a cos 3x माइनस 3b sin 3x कर दिया। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2e के पावर में 2x आ गया। अब हम लोग e के पावर में 2x कॉमन है, समय लेके कॉमन उड़ा देंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, cos का टर्म दो जगह है, आप उसको कॉमन ले लो, 3a प्लस 2b cos 3x और 2a माइनस 3b sin 3x, राइट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लो, तो sin 3x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और sin 3x का यहाँ क्या है 2a माइनस 3b, इक्वेशन 1 आया। और cos का टर्म ही नहीं है 0 और यहाँ cos का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 2b, ये दो इक्वेशन है। क्या इसको सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे माइनस 2b/3, यहाँ पुट कर दो 1 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 4b/3 माइनस 3b, तो इससे आएगा माइनस 13b/3 इज इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू आया माइनस 3/13, राइट। और यहाँ पे पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आया माइनस 2/3b, माइनस 3/13 कट गया, ये 2/13, a और b दोनों आ गया। उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, a का वैल्यू क्या था 2/13, तो यहाँ पे 2/13 और b की जगह डाल दूंगा माइनस 3/13, माइनस 3/13, 13 बाहर निकाल लोगे, वही आंसर आया होगा जो मैंने पीछे किया, राइट। तो दिस इज एंटी डेरिवेटिव मेथड, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। बस ये याद रखना, ई के पावर में कुछ भी हो, एक्स का लीनियर होना चाहिए, साइन का एंगल भी कुछ भी हो, या कॉस भी हो सकता है यहाँ, राइट। दिस इज फोर्थ टाइप, साइक्लिकसिटी पे दिखाया, एंटी डेरिवेटिव मेथड से मैंने इसको सॉल्व करके आपको शो किया। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद आता है आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस, राइट। पार्ट्स पे मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x² बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो, जब ये क्वेश्चन आना शुरू होगा तो आपके लिए सिर्फ पार्ट्स याद रखना और जो मैंने पीछे बताया उसको याद रखने से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। आप देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है, नीचे ऊपर टर्म्स हैं, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो आपसे नहीं बनेगा, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रफ में x sin x प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, राइट, प्रोडक्ट रूल से निकाल लेना। तो x कांस्टेंट cos sin x का 1 माइनस साइन x डिफ्रेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है x cos x। क्या x cos x ऊपर है, नहीं है, तो हम लोग ऊपर ले आएंगे उसको, x cos x ऊपर लाए, तो x तो पहले से x² था, तो x² तो एडजस्ट हो गया, cos को एडजस्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा नीचे, और यहाँ आया x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को इन्होंने तोड़ ताड़ के कॉमन काट के लिख दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है, तो ये आपको डिकोड करना पड़ेगा इस तरह से। अब ये पूरा फंक्शन जो देख रहे हो इंटीग्रेबल है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन है ऊपर, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन हो गया, और ये पूरे को मान लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और पार्ट्स लगाएंगे अब। तो देखो फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है, करके रख लो अलग से, यूज़ कर लेंगे हम लोग एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करके रख लिया करो, तो इसको t मान लेंगे, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लोगे, और तुम लोग को पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स कॉस एक्स आएगा, तो एक्स कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा डी टी। तो ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर, 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t प्लस सी, यानी कि -1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, राइट। वो इंटीग्रल हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट मत लिख देना, ठीक है, लिख दिया, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कोशेंट रूल से करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस कांस्टेंट एक्स का 1 माइनस एक्स कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन, ये आ गया, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। और इसका इंटीग्रेशन तो पहले से पता है हमको, -1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो ये कट गया पूरा, ये तो सेम रहेगा, माइनस बाहर निकालोगे प्लस हो गया, क्या बचा, सेक्स स्क्वायर एक्स बचा, और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, x बाई कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। वेरी वेरी वाइटल क्वेश्चन, ठीक है, ये सब कीमती क्वेश्चंस हैं गाइस। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स में, जिस पे क्वेश्चंस आता ही है और आना ही है एग्जाम्स में भी, और कंपटीशन में भी यूज़ होता है ये प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़, ई के पार में एक्स हो और एक फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव एडेड हो, तो ऐसे फंक्शन का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, ई के पार में एक्स इंटू जिसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है ना, तो ई के पार में एक्स इंटू एफ एक्स आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे ई के पार में एक्स दिया है और यहाँ पे है tan x और यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, ई के पार में एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन है यहाँ, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन है वही मल्टीप्लाई होगा, आंसर, राइट राइट। अब क्यों, तो ये आंसर देखा। अब बोलोगे सर ये प्रूफ करके दिखाइए ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो आई एम शोइंग यू द प्रूफ। देखो ई के पार में x, मैं ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई के पार में x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, लिख दिया मैंने इसको। अब देखो इसको मैं टच नहीं करूँगा, इसमें पार्ट्स लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन में ले लूँगा इसको फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन यू ऑल नो, ई के पार में एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स और इसका ई के पार में एक्स इंटीग्रल आ गया, खुद देख लो ये कट गया, आंसर, राइट, प्लस सी कर देना, ई के पार में एक्स एफ एक्स। और एंटी डेरिवेटिव मेथड से देखो तब भी दिख रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ रहा है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओ, देखो यही आ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक से क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या लगता है कि आपको दो फंक्शन आपको इस तरह से देगा, ई के पार में एक्स और बोलेगा यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पे 3x², आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो आप लिख दोगे एक्स क्यूब ई के पार में एक्स प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, राइट। तो आपको क्या करेगा, वो जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको सिंपली उसको एलसीएम लेके वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करके देगा, तो आपका ड्यूटी है कि उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना, जिसमें एक फंक्शन हो एक उसका डेरिवेटिव हो, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको पहले।
इंटीग्रेट ई के पावर में एक्स एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब, राइट। अब ये क्वेश्चन है, बोलेगा इंटीग्रेट, तो ये रूल अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा? तुम देख लो ई के पावर में एक्स है यहाँ, और यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो, तो ई के पावर में एक्स है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दें इस तरह से कि एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा आ जाए, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब वो स्प्लिट करने में दिमाग लगेगा आपका, एंड यू हैव टू डू इट, राइट। अब क्या करूंगा मैं, मुझे इसको दो फंक्शन में तोड़ना है, एक फंक्शन हो एक उसका डेरिवेटिव हो, और तुमको पता है कि नीचे में अगर पावर है तो डिफ्रेंशिएट करने पे वो बढ़ता है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 3 को लिख सकता हूं x माइनस 1 माइनस 2, राइट। स्प्लिट कर दिया मैंने, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 3 होता है, इसको अलग अलग कर देंगे, इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे मैंने अलग कर दिया। अब ये कट गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब चेक कर लो रफ में, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन है ये? तो बिल्कुल यस, 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, ऊपर आएगा ये -2 आगे आया, x माइनस 1 के पावर में -3, इसको नीचे ले जाओ तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, e के पावर में x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस c, खत्म। लेकिन ये आसान नहीं है, राइट। कभी कभी e टू द पावर x होता ही नहीं है, तो आपको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन की मदद से। जैसे देखो ln x बाई 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। अब आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ये इस पे वेस्ट है, क्योंकि यहाँ e के पावर में x है नहीं, लेकिन हम लोग को पता है कि ln और e टू द पावर x एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर मैं ln x को t मान लूँ, देखो उस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ बेस में e है, उसको e के पावर में t इक्वल्स टू x लिख सकते हैं, e के पावर में t dt, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया मैंने, पुट कर दो वैल्यू t बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और dx की जगह लिखोगे e के पावर में t dt, तो यहाँ के e के पावर में t dt लिख दिया आपने। अब देखो क्या ये इस फॉर्म में आ गया, यस, e के पावर में t है। अब इसको दो फंक्शन में स्प्लिट करना है, तो मैं t प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, राइट। अब अलग अलग कर दो, तो 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी द होल स्क्वायर डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो e के पावर में t इंटू 1 बाई 1 प्लस टी प्लस सी, आंसर t का वैल्यू डाल देना, ln x हो गया, ठीक है। तो अब ये स्प्लिट करना, ये तो मैं इजी सी क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपको बड़े आसानी से लग रहा है ये तो हो जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल इसमें बहुत सारे आते हैं, राइट। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लाख कोशिश करोगे तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इजी वाला एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। ln x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन है ये? नो, तुम चाह के भी नहीं ला सकते, क्योंकि ये दो क्वेश्चन का मिला जुला क्वेश्चन है। मैं क्या करूँगा, ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूंगा, एक है ln x प्लस 1 बाई एक्स, अलग कर दिया, और एक e टू द पावर x, और इसके अंदर में माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैंने अलग कर दिया। यानी कि सोचो कि ये इस तरह के दो क्वेश्चन का सम है ये, तो कभी कभी मिसिंग टर्म होता है तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर में x ln x, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो इसका आंसर हो गया e के पावर में x माइनस 1 बाई एक्स, हो गया ख़त्म। e के पावर में x कॉमन ले लोगे, ln x माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ये मान के चलना पड़ेगा आपको, द पाथ विल नॉट बी दैट सिंपल। हाँ, लॉन हो तो लॉन को t मान के तुम e के पावर में x का टर्म मिसिंग है तो ला सकते हो, वो ध्यान देना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। ओके,
इसके बाद पार्ट्स में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि थोड़ी देर पहले बोला था ना, ई के पार में एक्स साइन एक्स हो तो हम लोग पार्ट्स लगाते हैं, साइक्लिक है आ जाता है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इस फॉर्म में नहीं लिखा है लॉन साइन लॉन एक्स। अब आपको क्या लगेगा कि इसमें क्या करें, वो तो आपको समझ ही ना आए कि इसमें पार्ट्स लगाएं, क्योंकि ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इसमें साइन लॉन एक्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन एक्स को टी मान लोगे तो ई के पार में टी एक्स आ गया, ई के पार में टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो खुद देखो ये साइन टी हो गया और डी एक्स को लिख सकते हैं ई के पार में टी। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं आ गया? तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को याद रखो दिमाग में कि जब भी साइन लॉन एक्स हो, कॉस लॉन एक्स हो, तो वो इनडायरेक्टली यही फंक्शन है। लॉन एक्स को टी मान के टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो ये वैसा ही फंक्शन आ जाएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकोगे, राइट। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी पार्ट्स लगाओ मेक श्योर कि तुम पार्ट्स लगाने से पहले सिंप्लीफाई कर लो बाय ईदर ट्रांसफॉर्मेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन एंड देन अप्लाई पार्ट्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद गाइस हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके बाद कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। उसके बाद इंडेफिनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इन जनरल पार्ट्स का एक और करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना पड़ता है। इन्वर्स वाले में तो याद ही रखना, राइट। जैसे इन्वर्स वाला मैंने पहले किया था, और भी इस तरह के बहुत सारे आ जाएंगे, tan इन्वर्स √1 - x by 1 + x। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा के x की जगह cos थीटा डाल के ये tan में आ जाएगा, फिर tan इन्वर्स tan का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। वो सब याद रखना है आप लोग को, राइट। सिंप्लीफाई करते हुए इंटीग्रेट करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। और टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जूम के लाइव क्लास में भी किया था, वो एक दिखा भी देता हूँ दोबारा। √1 + x² किसी ने अपने दोस्त के लिए पूछा था। ln x² + 1 - 2 ln x by x⁴। तो ये देखो, ये भी पार्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्म डिफरेंट है, लॉग और एल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या किया था मैंने, इसको 2 को पावर में ले जाओ और log a - log b का फॉर्मूला लगा दोगे तो आ जाएगा log a by log a by b, ये आ गया। और x⁴ को मैंने ब्रेक कर दिया, एक x³ और एक x, ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। अब इस x को मैं इस रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये x² जाएगा, तो 1/x² + 1 हो गया। ये भी 1 + 1/x² हो गया और 1/x³ dx बचा हुआ है, ठीक है। अब 1 + 1/x² को हमने t ले लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -2/x³ dx इज dt। -2 को मैं उधर ले जाऊंगा नीचे, तो dx/x³ की जगह मैं उसको लिख सकता हूँ -12 dt। अच्छा t² ले लो, सॉरी ज़्यादा बेटर होगा, तो t² में 2t dt भी आएगा, 2 कट गया, t dt 2 उड़ा दो माइनस, तो ये हो गया t, ये हो गया ln t² और ये हो जाएगा t dt -t dt, तो t² dt कर दिया मैंने। ln में t² है, 2 बाहर आ जाएगा, तो -2 को बाहर निकाल लो। t² ln t में पार्ट्स लगा सकते हो, सबको दिख रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा log और ये 1 सेकेंड फंक्शन, इसके बाद पार्ट्स लगा दो, बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरी था।